मैं राहुल पांडे आप सभी का यूट्यूब चैनल एडुफिडेलिटी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये बोर्ड परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आइए लेट अस डिस्कस व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics which deal with measurement of angle is called trigonometry। प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टी रेशियो। जो हमारा फर्स्ट रेशियो होता है उसको हम साइन बोलते हैं, SINE। साइन को शॉर्ट में हम राइट करते हैं साइन। इसका हिंदी नेम जो होता है आपका ज्या होता है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा जो होता है ये कोसाइन होता है। कोसाइन जिसको हम शॉर्ट में राइट करते हैं कॉस, और इसका होता है हमारा कोज्या, हिंदी में बोलते हैं इसको कोज्या। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा जो होता है टेंजेंट। इसको शॉर्ट में राइट करते हैं टेन। इसका जो हिंदी नेम होता है वो आपका स्पर्श ज्या होता है। फिर फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका को टेंजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में राइट करते हैं काट, और हिंदी में इसको कोटि स्पर्श ज्या बोलते हैं। कोटि स्पर्श ज्या बोलते हैं। इसके बाद का जो हमारा होता है सीकेंट होता है। सीकेंट इसको हम शॉर्ट में सेक राइट करते हैं, SEC, और ये रेसिप्रोकल होता है कास के, इसीलिए हम इसको व्युत कोज्या बोलते हैं। व्युत कोज्या। लास्ट वन जो हमारा होता है कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट इसको शॉर्ट में हम राइट करते हैं कोसेक, और हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत ज्या। प्यारे बच्चों, इसको मेंशन कर लीजिए। सेकेंड थिंग वी हैव टू डिस्कस रिलेशन ऑफ टी रेशियो with angle theta। For it we have to draw a right triangle। See, dear student, this is triangle ABC, and this triangle is right angle at B. This angle will be 90 degree. Suppose this angle is theta. See, this angle is theta. AB will be base because triangle is formed on the base AB. So AB will be base. We will mention here base AB, and this is perpendicular line. BC is perpendicular. So we will mention here perpendicular. perpendicular, and AC is hypotenuse. AC is hypotenuse.
Dear student, in right angle triangle we are aware that the longest side will be hypotenuse and it is the opposite side of the 90 degree. So we will write here sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Shortly we can write perpendicular as P and hypotenuse as H. And perpendicular, value of perpendicular will be denoted by BC. So we can also write here BC upon, and hypotenuse will be denoted by side AC. So we will mention here AC. Third, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base can be represented by as B and hypotenuse will be represented by H, and base is represented by side AB. So we will mention here AB upon hypotenuse will be represented by side AC. So it will be AC. And tan theta is equal to perpendicular upon base. Shortly we write perpendicular as P and base as B. The value of perpendicular will be denoted by side BC. So it will be BC and base as AB. Cot theta is equal to base upon perpendicular base will be B and perpendicular will be P. It can be also written as perpendicular base is equal to AB and perpendicular is equal to BC. Sec theta is equal to hypotenuse upon base. Hypotenuse will be represented by side AC upon base is AB, and shortly we can also write hypotenuse as H and base as B. Last one ratio will be cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular hypotenuse as H and perpendicular as P. Hypotenuse will be represented by side AC and perpendicular will be BC. Dear student, please mention this. डियर स्टूडेंट, चलिए ट्रिक जानते हैं साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा को हम कैसे याद रखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। कास थीटा इज इक्वल टू, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। एंड टैन थीटा इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया कि ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो अब देखिए, यहाँ से हम शॉर्ट में ऐसे रख दें P अपान H और
ये बी पी बी पी अपान एच एच बी। तो ये शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसको हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। पी को हम मेंशन कर सकते हैं पाकिस्तान, बी को हम लर्न कर सकते हैं भूखा, पी फिर हम राइट कर सकते हैं प्यासा, फिर नीचे वाला जो टर्म है एच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिंदुस्तान, फिर ये एच है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हरा, बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भरा। इसको मेंशन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, चलिए अब रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। प्यारे बच्चों, मैंने बताया जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा P अपान एच मल्टीप्लाई एच अपान पी से P कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा हो गया। एक रिलेशन ये हो गया साइन का कोसेक के साथ, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने आप लोगों को बताया बेस अपान हाइपोटेनस होता है, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपोटेनस अपान बेस होता है। इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से मिलता है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस अपान बेस। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कास थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू आ गई 1, या हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करा लें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P अपान बी मल्टीप्लाई B अपान P। B से B कैंसिल आउट हो गया, P से P कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। डियर स्टूडेंट, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब जानते हैं यहाँ पे फिर से
डियर स्टूडेंट, आइए अब रिलेशन ऑफ साइन थीटा कामा कॉस थीटा विद tan थीटा एंड cot थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस एंड cos थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अगर हम cos थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा दें तो साइन थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस अपान हाइपोटेनस। या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस विल बी मल्टीप्लाई बाई एच अपान बी। एच इज कैंसिल आउट बाई एच, सो इट्स वैल्यू विल बी परपेंडिकुलर अपान बेस। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कि परपेंडिकुलर अपान बेस की ही वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। तो यहाँ से P अपान बी इज इक्वल टू tan थीटा आ गया, तो हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू हमारा tan थीटा हो गया। ये हो गया। अगर हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करा दें, अगर हम cos थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करा दें तो cos थीटा अपान cos थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कराएं तो cos थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल टू हमारा हो जाएगा b अपान h मल्टीप्लाई h अपान p। h is cancel out by h, so its value is b upon p, and the value of b upon p is equal to cot theta. So we can also mention cos theta upon sin theta is equal to cot theta. Dear student, please mention this.